अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. As you know that in previous lecture we completed we proved Theorem 6.3, and let us have a review of that with Theorem. In Theorem 6.3 we were given two triangles with their corresponding angles equal, and we were able to determine their corresponding sides were in equal proportion, and hence two triangles were similar, are similar. Or we can say that Theorem 6.3 states that if in two triangles corresponding angles are equal and their corresponding sides are in equal proportion, and hence two triangles are similar. और उसके बाद आफ्टर दैट मैंने असाइनमेंट आपके लिए रखा था थ्योरम 4 और थ्योरम 5 या 6.4 और 6.5. एंड आई नो दैट जैसे कि आपने देखा होगा कि इन थ्योरम 6.4 वट वी were given that if in two triangles sides of one triangle are proportional to the side in the same ratio to the sides of another triangle, then their corresponding angles are equal, hence we can say that these triangles are similar. And Theorem 6.5 states that if one angle of one triangle is equal to one angle of other triangle and the sides including these angles are in equal proportion, then we can say that these two triangles are similar. Now we can sum up these three theorems. तो पहली theorem है, if we are given two triangles, their corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in equal proportion, therefore we can say that these two triangles are similar. नेक्स्ट थ्योरम में हमें दिया गया था इफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल वायर इन इक्वल proportion to the corresponding sides of another triangle, hence these two triangles their corresponding angles are equal, and hence two triangles are similar. And if in case of two triangles, if the corresponding angle of one triangle are equal, the corresponding one pair of corresponding angles of two triangles are equal and their included sides are in equal proportion, then we can say that these two triangles are similar by SAS सॉरी, तो ऊपर वहाँ पे SSS और उससे पहले A, ठीक है ना बेटा. तो now we will proceed towards, तो अब हम कहाँ की ओर चले जाएं, तो इफ नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स एक्सरसाइज नंबर 6.3. अब हम एक्सरसाइज नंबर 6.3 की ओर चले जाएंगे. एंड आई होप कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है बिल्कुल इस वक्त आपके सामने होगी. तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इन फिग जो गिवन फिगर्स हमारे पास दी गई है और सिमिलर, वी हैव टू फाइंड दैट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल जो हमारे पास पार्ट नंबर फर्स्ट से लेके पार्ट नंबर 6 तक हमारे पास पेयर ऑफ ट्राइंगल्स दी गई हैं. एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू से दैट विच पेयर अमंग द गिवन पेयर्स आर सिमिलर, and not only similar, we have to write the similarity criterion used by you for answering the question and write the pair of similar triangle in the symbolic form. देखो बेटा हमने क्या काम करना है, वी हैव टू चेक इन जो जितने भी पेयर्स दिए गए हैं, दैट मीन 6 पार्ट्स में से ये जो 6 पेयर ऑफ ट्राइंगल्स हैं, इनमें से वी हैव डिटरमाइन विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर. तो उसके लिए हमने विच सिमिलरिटी क्राइटेरियन बताना है, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया था पहले थ्योरम में. हमने एंगल उसके बाद साइड उसके बाद साइड एंगल साइड. तो यहाँ इन 3 क्राइटेरिया में से कोई भी, अगर इन पेयर में से कोई भी क्राइटेरिया फॉलो करता है, एंड वी हैव टू राइट दैट, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू राइट दीज ट्राइंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म. तो पार्ट नंबर फर्स्ट हमारे पास है, वी आर गिवन दैट in triangle ABC and triangle PQR, and angle A equals 60, angle B equals to 80, angle C equals to 40. I say it in case of triangle PQR, angle P equals 60, angle AQ equals to 80, and angle R equals to 40. तो what we have to do, we have to check are these two triangles similar or not. ठीक है ना बेटा. हाँ, तो we can write it as इन ट्राइंगल्स. देखो बेटा हमारे पास ट्राइंगल्स कौन कौन से हैं, ट्राइंगल्स ABC एंड PQR वी हैव. देखो बेटा एंगल A इक्वल्स टू एंगल P बिकॉज, हाँ शाबाश, ईच एंगल A और एंगल P बराबर है बिकॉज ईच 60. एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q बिकॉज, हाँ क्यों, हाँ बिकॉज ईच
80। ऐसे ही एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर, तो तब जाके भी हमें पता है बिकॉज एज 40, देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एंगल 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 एस सी सिमिलरिटी क्राइटेरियन। तो ये सिम्बियोलिक फॉर्म है। तो क्यों सिमिलर है, ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, क्यों सिमिलर है, बिकॉज देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। तो एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, और एंगल सी एंगल आर के बराबर है, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर, बिकॉज रीजन क्या हमारे पास ईच 40 डिग्री, देयरफॉर वी कैन से दैट दिस पेयर ऑफ, जो पहला वाला पार्ट हमारे पास था, तो पहला पार्ट का जो पेयर ऑफ ट्रायंगल्स है दे आर सिमिलर, बिकॉज वाई दे आर सिमिलर, बिकॉज देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। एंड देयर सिम्बियोलिक फॉर इन ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर। तो ये जो इनकी सिम्बियोलिक फॉर्म है दैट इज ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर है, ठीक है ना बेटा। तो ऐसे ही पार्ट नंबर सेकंड, तो पार्ट नंबर सेकंड में हमारे पास क्या दिया गया है, शाबाश, वी आर गिवन ए पेयर ऑफ ट्रायंगल्स दैट इज ट्रायंगल ए बी सी, ये हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी, हाँ, तो इसमें दिया गया है ए बी इक्वल्स टू ए सी 3 के बराबर है एंड बी सी इक्वल्स 2.5, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे हमने चेक करना है कौन ट्रायंगल, या इन ट्रायंगल्स में से दो ट्रायंगल्स हमारे पास, और एक ट्रायंगल हमारे पास है ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी, ऊपर पी दिया गया है, हाँ, पी क्यू, तो ये वहाँ पे क्यू है और ये आर है, तो यहाँ पे ये 6, ठीक है बेटा, हाँ, तो ये 5 है और ये 2 है। तो यहाँ पे हमने चेक करना है कौन साइड किसको कॉरस्पॉन्ड कर सकता है। देखो 3 1s 3 2s, तो ये साइड और ये साइड आपस में कॉरस्पॉन्ड करेंगे। 2.5 ये 5 है, तो 2.5 2s, ठीक है ना बेटा। और ये साइड 2 4 के साथ, तो यहाँ पे ये 2 नहीं है, ये 4 दिया गया होगा क्यू आर, शाबाश, क्यू आर 4 के बराबर है, शाबाश, ठीक है ना बेटा। तो व्हाट वी कैन राइट, देयरफॉर वी नो दैट, या व्हाट वी ऑब्जर्व दैट, हाँ बेटा, तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, बी सी डिवाइडेड बाय पी आर इक्वल्स टू 2.5 divided by 5, that is 2.51 2.52, ठीक है, शाबाश, कामा और हमारे पास है एंड, हाँ, अब ए सी डिवाइडेड बाई पी क्यू इक्वल्स टू 3 डिवाइड बाई 6, वो हो गया 3 1s 3 2s 1/2, एंड ऑल्सो, और रिमेनिंग जो पार्ट है दैट इज ए बी डिवाइड बाई क्यू आर इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 2 1s, वो हो गया 1/2। तो फ्रॉम above it is observed that, देखो what we observe here, we observe that the corresponding sides of these two triangles are in equal proportion, that is their proportion is 1/2. We know that if in case of a two triangles the corresponding sides are in equal proportion, then we can say that the pair of triangles, these two triangles are what they are then similar, shabash, it is observed that corresponding sides, हाँ, ऑफ ट्राइंगल्स, कौन कौन सी ट्राइंगल है, ए बी सी एंड पी क्यू आर इन इक्वल प्रपोर्शन, देयरफॉर, तब जाके क्या है,
triangle ABC is similar triangle PQR by SSS similarity criterion SC। ठीक है ना बेटा, शाबाश। नाउ आई होप कि इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 3rd 4th 5th एंड 6th, पार्ट 3rd, हाँ यहाँ पे लिखूँगा। नाउ पार्ट 3rd, पार्ट 4th, पार्ट 5th एंड पार्ट 6th और असाइनमेंट्स फॉर यू। ठीक है ना बेटा, तो पार्ट कौन सा, पार्ट 3rd, पार्ट 4th, पार्ट 5th एंड पार्ट 6th ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.3, they are assignment for you। what you have to do, you have to find that। हाँ, इन जो रिमेनिंग पेयर्स हैं, पार्ट नंबर 3rd का पेयर है, पार्ट नंबर 4th जो ट्रायंगल्स का पेयर है, पार्ट नंबर 5th जो ट्रायंगल्स का पेयर है और पार्ट नंबर 6th जो ट्रायंगल्स का पेयर दिया गया है, इनमें से आपने देखना है कौन सा पेयर, कौन सी ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल को सिमिलर है, और अगर सिमिलर है तो वी हैव टू डिटरमाइन द क्राइटेरियन उसके लिए, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट दिस पेयर इन द सिम्बियोलिक फॉर्म। उसके बाद आपने क्या काम करना है, तो उसी पेयर को, जो पेयर सिमिलर होगा उसी को हमने सिम्बियोलिक फॉर्म में लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, triangle ODC, we are given that in question number 2 triangle ODC is similar triangle OBA। अगर ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA को है तो दैट मीन्स वी नो दैट एंगल D इज कॉरस्पॉन्ड्स टू एंगल B। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्ड एंगल्स इनके बराबर होंगे, तो एंगल D और एंगल B आपस में बराबर होंगे। ठीक है ना बेटा, और एंगल A किसके बराबर होगा, शाबाश, एंगल C के बराबर। ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो व्हाट वी आर गिवन, तो हमारे पास दिया गया है ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ODC इज सिमिलर ट्रायंगल OBA कामा एंगल BOC इक्वल्स टू 125 एंड एंगल CDO इक्वल्स टू 70। टू फाइंड, तो हमने क्या काम करना है, व्हाट वी हैव टू डिटरमाइन, व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमने मेजर ऑफ एंगल, हमने एंगल DOC कामा एंगल DCO एंड एंगल OAB हमने निकालना है। ठीक है ना बेटा, हाँ, तो पहले हम क्या काम करेंगे, वी कैन डिटरमाइन एंगल DCO। ठीक है बेटा, शाबाश, प्रूफ। हाँ, वी नो दैट, हाँ हमें बेटा पता है एंगल CBOB या एंगल BOC प्लस एंगल DOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है ना बेटा, DOC, तो पहले ही हम एंगल DOC निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, हाँ, तो वी कैन राइट इट एज एंगल BOC। एंगल BOC 125 दिया गया है, 125 प्लस एंगल DCO इक्वल्स टू 180 और एंगल DCO इक्वल्स टू 180 माइनस 125, तो दैट इज एंगल, हाँ DOC, सॉरी यहाँ पे DCO नहीं है, DOC है एंगल, हाँ ऐसे DOC एंगल है, तो दैट इज एंगल DOC इक्वल्स 180 माइनस 125 दैट इज 55। तो एंगल DOC, तो DOC हमारे पास किसके बराबर है, ये निकला किसके बराबर, 55 के बराबर। सॉरी, DOC तो 55 के बराबर आ रहा है। ठीक है ना बेटा, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड एंगल DCO। नाउ अब हम क्या काम करेंगे, इन ट्रायंगल DOC वी नो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है बेटा, तो वो क्या है,
एंगल डी ओ सी प्लस एंगल ओ डी सी प्लस एंगल डी सी ओ इक्वल्स टू 180 बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एंगल डी ओ सी दैट इज 55 प्लस एंगल ओ डी सी हो गया 70 प्लस एंगल डी सी ओ इक्वल्स टू 180 एंगल डी सी ओ इक्वल्स टू 180 माइनस 125 एंगल डी सी ओ इक्वल्स टू 55। ठीक है बेटा, तो एंगल डी सी ओ किसके बराबर आ रहा है हमारा? वेरी गुड, ये भी आ गया 55 के बराबर। नाउ वी आर गिवन दैट, देखो एज पर क्वेश्चन हमें दिया गया है क्वेश्चन के हिसाब से, तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल? ओ डी सी इज सिमिलर ट्रायंगल ओ बी ए। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके ऑब्वियसली इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। दैट इज देयरफॉर वी कैन राइट इट एज देयरफॉर एंगल डी सी ओ इक्वल्स टू एंगल ओ ए बी। हाँ, दैट इज एंगल डी सी ओ अभी निकला, एंगल डी सी ओ किसके बराबर है? 55 इक्वल्स टू एंगल ओ ए बी और एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू 55। तो नाउ हमारे पास तीनों एंगल्स आ गए जो हमने डिटरमाइन करने थे। दैट इज एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी 55 के बराबर है, एंगल डी सी ओ, एंगल डी सी ओ भी निकाला था तो 55 के बराबर निकला, और एंगल ओ ए बी हमने निकालना था तो ये भी 55 के बराबर निकला। तो दिस इज़ एनफ फॉर टुडे। आई होप कि जो मैंने असाइनमेंट आपको दिया है, ठीक है ना, वो आप ठीक से करोगे। कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी असाइनमेंट सॉल्व करने में तो आप मेरे नंबर 8492019905 पे कॉल कर सकते हो। ठीक है ना बेटा, तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू।